Thank you so much, everyone, for joining today's session. So we will begin today's session. And as you all know about the topic, it's importance of Kartik or Damodar Mass that we will be going to learn today. So again, thank you so much for joining today's session. So let's do small prayers, and afterwards we will begin with our session. All right. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 So we have prayed Lord, we have chanted shloka from Srimad Bhagavatam, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Mm. So now we will begin with our session. So I will be speaking in both English as well as Hindi language so that it will be understood by everyone. Mm. And okay, so let me just share my screen. Just type in the chat box if you are able to hear me. And I'm visible to you. Just type in the chat box. Why? Okay. Thank you. Thank you so much for your response. So I will just hide the things. All right. All right. So today's topic is importance of Kartik Damodar Mass. ना इसको कार्तिक या दामोदर मास क्यों कहते हैं, या क्या है ये कार्तिक और दामोदर मास ना। सो हम लोग पहले वो देखेंगे। और जैसे कि आप लोग को पता है कि कल से दामोदर कार्तिक मास चालू हो गया है ना, तो इसीलिए ये पर्टिकुलर सेशन मैंने रखा है। नाउ यू माइट बी नॉट एबल टू सी ईच अदर बिकॉज दिस इज अ वेबिनार। सो इन वेबिनार you would be able to see me only, right? So just be patient and you won't be able to speak also. Okay, so here I will be going to speak. If you have to speak or if you have to ask any questions, please feel free to drop in the chat box or in Q&A session. If it is a question, drop in Q&A section. And if it is, if I'm asking you something like a reply to any of the things which I'm asking, then why, me, I, something like that, if I will ask you, then reply in the chat box. All right. And please, I would request you to please be focused, and it will be good if you have pen and paper along with you so that you can take notes also. All right. So please take notes as much as possible so that later point of time you can refer it. And if you will be going to inform this your learnings to someone, then you will be able to see it and you can recall it and you can tell to others also. All right. So that is why I would request you to please make a note of each and every thing whatever I'll be going to speak. Yeah. And whatever things are important, that I will emphasize twice, thrice. Yeah? So you can understand that this word is very important. So you just make a note of that word in your notebook. All right. And I would say for now, for 1 hour or 1.5 hours, you please be focused. Don't look
here and there. Just be focused. Whatever I'm telling you, just try to hear it. Don't worry if you're not able to understand it. It's okay. All right. And if you're able to understand it, then just understand it. All right. And if you're not able to understand anything, feel free to ask me. I will try to make it more simpler for you. That is why I'm here to let you understand this topic very nicely, so that year after year you will be able to do follow this, observe this important Damodar Mass with seriousness. All right. Because there are many students, kids, they are not aware about the benefits of this mass. This mass or this month, actually mass is the word of Hindi word or Sanskrit word of month. Hmm? All right. So that is why you are very fortunate. You are attending this session live, and or those who will be going to watch this video in future, they will be able to understand the importance of this month and how to observe this month and what are the benefits of this month. So these things they will be going to learn. You will be going to learn. All right. So again, thank you so much for joining. Please be focused. All right. Thank you. So let's begin with what is Kartik Damodar Mass. So I will just expand this and we'll see the Kartik Nakshatra. So why this Kartik name is given to this? It is this name is given because this Kartik month, like all the months are having a nakshatra, like there is a name for nakshatra, same that nakshatra name is given to this month also. So Kritika Nakshatra, that's why this name is given. And again, the daughter of Kirtida Mata. Yeah? Who is daughter of Kirtida Mata? Just type in the chat box name of the daughter of Kirtida Mai. Let's see who writes. Okay. Yes, it's Srimati Radharani. Radharani is the daughter of Kirtida Mataji, and her name is uh, Kritika. So, based on her name, this month name is also given as Kartik. Hmm? That is also one thing. And why it is so important? So, Kartik is one. No, the name is given because the Srimati Radha Rani, ये राधा रानी का एक नाम है ना, कृतिका, इसके लिए इसका नाम कार्तिक पड़ा है। और एक है कि दामोदर ना, दामोदर है। और दामोदर नाम कैसे पड़ा? दामोदर नाम पड़ा, दाम, दाम मतलब क्या? रस्सी, उदर मतलब पेट। तो यशोदा माई ने इसी मंथ में भगवान को रस्सी से बांधा था, उखल ने ना, तो इसीलिए इसका नाम और क्या पड़ा? दामोदर। ऐसे तो। और ये मंथ, इसको ऊर्जा मास भी बोलते हैं ना, मास मीन्स मंथ। ऊर्जा मास भी बोलते हैं। ऊर्जा मतलब क्या? बल, एनर्जी ना, एनर्जी आती है इसमें, इसमें बहुत शक्ति आती है। ठीक है। और इसीलिए इसका नाम क्या है? ऊर्जा मास। तो इसमें क्या करते हैं, एक मंथ में सब लोग बहुत सारी एनर्जी एकत्रित करते हैं। कैसे एकत्रित करते हैं ना? चैरिटी करके, चैंटिंग करके, तपस्या करके ना, इस मंथ में। तो ऐसे करके इसमें, इस मंथ में बहुत लाभ मिलता है ना सबको। हम्म ऐसा तो ये मेन इसका मतलब है कार्तिक महीने का। और इसकी जो अधिष्ठात्री देवी है ना इस महीने की, हर एक महीने के एक मेन रहते हैं ना। तो इसके जो मेन है वो कौन है? श्रीमती राधा रानी। इस मंथ की जो मेन देवी है वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसके लिए ये बहुत ही स्पेशल मंथ है। और जैसे हम लोग देखते हैं कि इस पूरे पृथ्वी की अधिष्ठात्री देवी कौन है?
ना। इस पूरे भौतिक जगत की एक्चुअली अधिष्ठात्री देवी कौन है? दुर्गा देवी ना। और ऐसे ही इस मंथ को बोलते हैं ना कि जो श्रीमती राधा रानी ने जो मतलब बहुत उनकी पूजा करते हैं, उनका जप करते हैं भगवान के नामों का, तो राधा रानी बहुत प्रसन्न होती है और जो भी कमी है उसको पूरा कर देती हैं। ना, जो भी मतलब जैसे हमने कुछ निर्धारित किया कि हम इतना इतना चैंट करेंगे ना, हमने सपोज बोल दिया हम हमेशा 4 माला करते हैं ना, लेकिन हमने बोला अब हम लोग कार्तिक मास में 8 माला, 8 राउंड्स चैंटिंग करेंगे। तो श्रीमती राधा रानी इतनी मर्सीफुल है कि अगर हम 8 नहीं कर पाए, हम 6 ही कर पाए ना, 2 नहीं कर पाए, तो राधा रानी क्या करेंगी, वो 2 माला हमको दे देंगी ना। कि हमारा संकल्प हमने लिया है ना श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए, श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, तो क्या करेंगी वो हमको वो 2 माला ऐड करवा देंगी ना। तो ये हमको उनसे कृपा मिलती है। तो इसीलिए इस महीने का बहुत महत्व है ना। ऐसे नहीं कि हम छोटे हैं तो हमको ये फॉलो नहीं करना चाहिए, नहीं। आप ही आज छोटे हो लेकिन कल चल के आप ही क्या होगे, बड़े होंगे ना। यू विल नॉट रिमेन एज अ किड for throughout your life, correct? For for time being you are a kid na. After that you will grown up and you will become a matured boy, girl na, you will become, and man, woman you will become. hmm? Then you should know what you have to do, correct? For that purpose it is very necessary to observe this month very seriously. hmm? ना, नहीं तो क्या है कि अगर हमको पता ही नहीं है तो हम लोग तो ठीक से इसको पालन ही नहीं कर पाएंगे, करेक्ट ना। कोई इसीलिए ये सेशन मैंने रखा है जिससे कि आप लोग को इस मंथ का इम्पोर्टेंस पता चले। तो दैट इज वन ऑफ द मेन रीजन, ऑलराइट, फॉर कीपिंग दिस सेशन, because we have to grow up with our material study as well as spiritual studies na? So I will be giving you blend of both. I will teach you material as well as spiritual, दोनों में सिखाने वाला हूँ ना। तो आज हम लोग स्पेसिफिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट how important this month is for students, for kids, and थोड़ा सा इसमें प्रैक्टिकल भी मैं बताऊंगा ना, कैसे इसको हमको करना है। ठीक है, तो अभी हम लोग चलते हैं, इसका बेनिफिट्स देखते हैं। ठीक है, व्हाट आर द बेनिफिट्स? सो द फर्स्ट बेनिफिट इज हाई डिस्काउंट सेल ऑफ मर्सी ना। जैसे कुछ आता है ना कभी कि डिस्काउंट लगा है ना, डिस्काउंट लगा है तो सब लोग क्या हो जाते हैं, एकदम अटेंशन में आ जाते हैं, अरे डिस्काउंट लगा है ना। जैसे 25% डिस्काउंट, 70% डिस्काउंट अमेजोन पे ना, तो हम क्या करते हैं, अरे क्या क्या आइटम है, फटाफट वी स्टार्ट चेकिंग, अरे व्हाट आर द आइटम्स, ओके दिस आइटम दिस आइटम, हम क्या करते हैं उसको अपने कैटलॉग में ऐड कर देते हैं और फिर उसको हम लोग देखते हैं, फिर उसमें से कौन सा ज़रूरी है और वो जाके हम परचेस करते हैं, बाय करते हैं, करेक्ट। ये हम लोग फॉलो करते हैं ना। तो ऐसे ही ये 70% देके भले वो माल खराब होगा तभी भी हम लोग क्या कर लेते हैं, फिर भी वो हम लोग ले लेते हैं ना। ये भौतिक जगत में ऐसा चलता है ना, भले वो माल कैसा भी हो लेकिन 70% डिस्काउंट है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर अस ना। दैट दिस इज दैट वी आर गेटिंग 70% ऑफ डिस्काउंट ना, that attract us to buy that product, correct. So here similarly this is a spiritual cells. Now this is spiritual cell where we will be going to get mercy ना। मर्सी किसका, मर्सी मिलने वाला है, किसका कृपा मिलने वाला है, भगवान जी का। हमको भगवान जी कौन, श्री कृष्ण, श्रीमती राधा रानी ना, यशोदा माई। तो इनका हमको कृपा मिलने वाला है इस पूरे कार्तिक महीने में। हाँ, तो इसीलिए हमको बहुत मतलब बोलते हैं ना कि अगर हम लोग थोड़ा भी करेंगे तो भी उसका बहुत गुना उसका फल होगा ना। वो कैसे होगा वो आगे भी हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो एक स्टोरी आती है, स्टोरी ऑफ माउस और एक सत्यभामा, जो कि श्री कृष्ण की एक पत्नी है ना, सत्यभामा। तो उनके बारे में भी हम लोग सुनेंगे। एक बार क्या होता है कि एक छोटा सा चूहा, वो क्या होता है कि उसको बहुत घी खाने का वो रहता है ना, तो वो थोड़ा सा लैंप, क्या होता है लैंप लगाया रहता है ना, भगवान जी का कार्तिक महीना था, मंदिर में दीपक जला के रखे थे घी के, तो उसको रहा नहीं गया उस छोटे से चूहे को
माउस को। वो क्या किया, मंदिर में घुस गया और उसको घी खाने का बड़ा मन कर रहा था। तो उसने क्या किया कि उस जो बाती लगी थी तो उसमें से पीछे से घी खाने लगी। क्या हो गया, वो बाती चिपक गई उसको। और जब चिपक गई उसको तो वो क्या करने लगा, चूहा यहाँ वहां फुदकने लग गया भगवान के सामने। और फुदकते फुदकते क्या हुआ कि वो ऐसा फुदका कि ऐसे लगा कि वो आरती कर रहा है भगवान जी का। क्योंकि वो जो उसका बाती थी, वीट था, जो वीट क्या हो गया, उस चूहे को चिपक गया। और ऐसे करके वो धीरे धीरे पूरा यहाँ वहां दौड़, उसको जलने लग गया ना, तो इधर उधर दौड़ने लग गया। और उसी में क्या हो गया, ऐसे हुआ कि भगवान के सामने वो उछल कूद कर रहा था, तो ऐसे लगा भगवान को वो लैंप ऑफर कर रहा है। तो इससे उसको कृपा क्या मिली, उसको कृपा ये मिली कि ऊपर से एक विमान आया ना, कहाँ से, विष्णु लोक से विमान आया। और विमान में उनको लेने के लिए कौन आए, विष्णु दूत आए। और उस चूहे की एक्चुअली जल के वहां पे मृत्यु हो गई ना। और उसकी जो आत्मा, उस चूहे का ना, जो चूहा का तो शरीर जल गया, लेकिन उस आत्मा को क्या किए, वो लोग लेके कहाँ गए, वैकुंठ लोक में। और वहां पे उनको क्या मिला, उनको विष्णु के जैसा शरीर मिला। विष्णु लोक में सब लोग कैसे रहते हैं, चतुर्भुज रूप में, चार, दो हाथ दो पैर रहते हैं। और सब वो लोग विष्णु के जैसे ही दिखते हैं विष्णु लोक में। हाँ, तो उसको क्या हो गया, विष्णु लोक में वो चला गया चूहा। तो देखो, उसने अनजाने में किया ना, उसने जान के किया था क्या भगवान की आरती, नहीं। उसका तो शरीर जल रहा था, लेकिन वो जानबूझ के मतलब अनजाने में वो यहाँ वहां कूदने लग गया। लेकिन भगवान ने क्या स्वीकार कर लिया कि उसने मुझे अब दीपक दिखाया। और वो भगवान ने स्वीकार कर लिया, क्योंकि कार्तिक महीने में, कार्तिक मास में भगवान को दीपक दिखाने का बहुत महत्व है ना। हमको लैंप ऑफर करना चाहिए भगवान को। तो ये एक स्टोरी है। ऐसी एक सत्यभामा का स्टोरी है। सत्यभामा अपने पुराने जीवन में ना, पहले जब वो आई थी पहले के जन्म में, तो उसमें वो बहुत गरीब दुखियारी थी ना। तो उनका बहुत कुछ, सब उनका लॉस हो गया था, बहुत कुछ नुकसान हो गया था। और फिर वो एक साधु के पास गई। और साधु से बोली कि साधु महाराज, मेरे जीवन में बहुत कष्ट आ रहा है, मुझे बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, मैं क्या करूं। तो जो साधु महाराज थे, उन्होंने क्या कहा कि आपको अभी कार्तिक महीना आ रहा है, उस कार्तिक महीने में आपको दीपदान करना है, रोज दीपदान करना है आपको, और भगवान के नामों का जप करना है ना, ऐसे सब चीजें उनको बताते हैं। वो हम लोग आगे देखेंगे। तो फिर सत्यभामा क्या करती, बहुत सीरियसली उसको फॉलो करने लग जाती है। हाँ, बहुत सीरियसली उसको फॉलो करने लग जाती हैं। और ऐसे ही क्या होता है कि वो जब आता है कार्तिक महीना, वो रोज सुबह शाम जाके भगवान को दीपक दिखाने लग जाती हैं। और फिर कुछ वो फास्टिंग भी करने लग जाती हैं ना। इससे क्या होते हैं, भगवान प्रसन्न होते हैं, श्रीमती राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं कि ऐसा भक्त है जो मेरे स्वामी की ऐसी पूजा, ऐसी भक्ति कर रहा है ना। उस भक्ति से, उस प्रेम से वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। और वो क्या करते हैं कि अगले जीवन में भगवान श्री कृष्ण उनको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं ना। वही सत्यभामा जो बहुत दुखियारी थी, उसको क्या होता है, वो किसकी वाइफ बनती है, श्री कृष्ण की वाइफ बन जाती है ना। तो कितना मर्सीफुल है ना भगवान का, खाली दीपक दिखाया ना, चूहे ने अनजाने में दीपक दिखा दिया तो उसको कितना वैकुंठ चला गया। हाँ, तो इसलिए ये जो महीना है बहुत ही पुण्य प्रदान करने वाला मंथ है ना। और ऐसे ही हमको भी ये सब चीजें करेंगे। ऐसे नहीं कि आप अभी छोटे हो या बड़ों को ही करना चाहिए, नहीं। आप भी क्या हो, आत्मा हो। एक जो बड़ा व्यक्ति है वो भी क्या है, आत्मा है। एक जो चूहा है वो भी क्या है, आत्मा है ना। लेकिन वो अपने एक शरीर में है ना। ऐसे नहीं कि आप लोग दीपदान नहीं कर सकते हो, आप भी कर सकते हो। आपको बोलने आता है, आप भी चैंटिंग कर सकते हो ना। जो फल या जो पुण्य बड़ों को मिलने वाला है वो आपको भी मिलेगा। और आप अभी से ही प्रैक्टिस करोगे तो आगे चल के आप क्या होगे, आपका जो पर्सनालिटी है वो बहुत अच्छा डेवलप होगा। और आपके ऊपर बहुत कृपा रहेगी भगवान की ना। जो बड़े बड़े संकट आपके मार्ग में आने वाले हैं, वो सब क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। ठीक है। इसीलिए हमको ये मंथ बहुत सीरियसली ऑब्जर्व करना है, बहुत सीरियसली रहना है। कुछ गंदी बातें नहीं बोलनी है ना, ज्यादा गुस्सा नहीं करना है। ज्यादा से ज्यादा भगवान के बारे में चिंतन करना है, भगवान का सोचना है, भगवान की सेवाओं के बारे में सोचना है, भगवान की जो लीला है उसके बारे में सोचना है हमको।
और है कि गो बैक बैक टू गॉड हेड ना। ऐसा हम अगर ऑब्जर्व करेंगे कार्तिक मास को अच्छे से सीरियसली, तो हम कहाँ जाएंगे? भगवान के धाम में जाएंगे फिर से। और जब जो एक बार भगवान के धाम में चला जाता है तो वो रिटर्न आता है क्या? नहीं आता है ना। वो क्या होता है? वो भगवान के धाम में रह जाता है। तो वो जो बोलते हैं ना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि ना। जन्म, फिर मृत्यु होती है, फिर जरा मतलब बुढ़ापा ना, व्याधि मतलब कि बीमार पड़ना। तो ये सब क्या होता है? जब हम इस शरीर में रहेंगे, कोई भी शरीर में रहेंगे, तो ये प्रॉब्लम से हम गुजरेंगे। इससे कंप्लीट छुटकारा चाहिए तो हमको कहाँ जाना है? भगवत धाम जाना है। ठीक है। तो ये जो मास है, ये जो मंथ है, ये हमारे लिए ये सुनिश्चित करता है, अगर हम इसको बहुत सीरियसली फॉलो करेंगे तो हमारा भगवान के धाम में जाना सुनिश्चित हो जाएगा। ऐसे तो इसीलिए जो भी समय हमको मिला है, बहुत सीरियस रहना है हमको ना इस मंथ में। और क्या होता है इसमें? हमको इसमें स्ट्रेंथ मिलती है, हमको शक्ति मिलती है, हमको ताकत मिलती है। कैसी ताकत मिलती है? निगेटिविटी से लड़ने की ना, नकारात्मकता। जिससे कि होता है ना नकारात्मक, अरे मैं ये नहीं कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मैं इसको नहीं उठा सकता हूँ, मुझे बहुत गुस्सा आता है, मैं गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ऐसा सब बोलते हैं ना। तो ये क्या है? ये मंथ में ऐसी निगेटिविटी दूर हो जाती है ना, स्ट्रेंथ आता है, और जो निगेटिविटी है वो कोसों दूर चली जाती है। ठीक है। तो ये इसका बहुत बड़ा बेनिफिट है इस मंथ का। इस मंथ में और एक कथा बहुत फेमस है ना। आप लोग सुनना चाहोगे स्टोरी? चैट में वाई डालो, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू हियर द स्टोरी। चैट में डाल पा रहे हो कि नहीं डाल पा रहे हो? यस, डाल पा रहे हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स। ओके, लेट्स हियर वेरी फेमस स्टोरी ऑफ दामोदर लीला ना। भगवान कहते हैं ना कि जन्म कर्मच में दिव्यम यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। जो मेरे जन्म और कर्म को जान लेता है वो वापस इस जगत में नहीं आता। इसीलिए हमको क्या है कि इस मंथ में ना, इस कार्तिक मास में, दामोदर मास में, हमको भगवान की लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। श्रवण करने से क्या होगा? हमारा भगवत धाम जाना फिक्स हो जाएगा ना। भगवान बोले ना, जो मेरे जन्म और कर्म की लीला सुनता है, मैं उसको अपने धाम में खींच लेता हूँ। करेक्ट। तो इसीलिए हमको फिर भगवान के लीलाओं का श्रवण करना चाहिए। इसलिए अभी इसको जो बोलता है और इसको जो सुनता है ना, सबको लाभ होता है। आप लोग भी इसको सुनो। आप लोग को क्या करना है? सुन के इसको अपने दोस्तों को भी सुनाना है ना, आपके फ्रेंड्स लोग को ये स्टोरी बतानी है। इससे आप लोग को और कृपा मिलेगी। ठीक है। ज्यादा से ज्यादा लोगों से आप लोग शेयर करना इस स्टोरी को। ठीक है। तो अभी मैं बोलता हूँ, ये दामोदर लीला से भी ये आता है। एक बार क्या होता है, यशोदा माई वो कृष्ण को दूध पिलाते रहती हैं ना, अपना दूध पिलाते रहती हैं। कृष्ण एकदम छोटे से थे ना, बालक थे, छोटे, 2 2 साल या 3 साल के करीब के थे वो। तो वो चल भी पाते थे वो टाइम पे, और लोग दूध पी रहे थे अपनी माता का। और क्या होता है कि यशोदा माई ने चूल्हे पे दूध उबलने के लिए रखा था। और वो दूध बहुत स्पेशल दूध था। वो दूध ऐसा दूध था कि जो वो कृष्ण को पिलाने वाले दूध था। और वो दूध बहुत स्पेशल, उनके पास कितनी गैया थी? 9 लाख गैया थी नंद बाबा के पास। और नंद, और जो 9 लाख गायों में से ऐसे पांच, कुछ 8 प्रमुख गायें थी। 8 प्रमुख गायों में से भी जो 3 4 ऐसी कुछ गायें थी, उसका एकदम स्पेशल दूध वो वाला था। तो क्या होता है कि दूध में उबाल आ जाता है। और जैसे ही दूध में उबाल आता है तो वो दूध गिरने लगता है ना। और गिरने वाला रहता है तो ये यशोदा माई को स्मेल आता है ना, कि ऐसा ऐसा लगता है दूध जल रहा है। तो फटाक से वो क्या करती है? कृष्ण को दूध पिलाते रहती है, उठा के उनको नीचे रख के जाके वो दूध को, चूल्हे को, या दूध का जो टोप था उसको उतार के नीचे रखने चली जाती है। और इसी में क्या हो जाता है कि कृष्ण भगवान बहुत गुस्से में हो जाते हैं। वो गुस्से में हो जाते तो क्या करते हैं कि सारी वो जो, और उस समय फिर जो वहां पे ये रखा था अपना, दही को मथते हैं ना,
वो रखा था, फिर मथनी थी। और यशोदा माई मत्ती थी उसमें। और फिर वो मथनी लेके वो क्या किए, वो मटके को सीधा तोड़ दिए, और वो पूरा माखन और पूरी दही वहां पे फैल गई। हाँ, ऐसे ही करके फिर वो, और फिर और फिर धीरे से उनके पैर में तो सब लग गया। और फिर पैर में जब लग गया तो वो जाके छुप गए एक जगह। और फिर यशोदा माई को उनके पैर दिख गए, तो यशोदा माई देखी, अरे सब जगह ये कैसे फैल गया। तो उनको लगा कि ये कृष्ण का ही काम है, कृष्ण ने ही इसको गिराया है। तो कृष्ण को ढूंढने लगती है, तो उनके पैर के जो छप्पे रहते हैं, जो छपे हुए रहते हैं जमीन पे, वो देख के वो उनके पास में आती, तब तक वो वहां से भागने लगते हैं। तो कृष्ण भगवान जोर जोर से भागने लगते हैं यहाँ वहां। फिर ये यशोदा माई एक लकड़ी लेके उनके पीछे लग जाती, रुको आज मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुमको इस उखल से ही बांधूंगी। और फिर भागते भागते भागते, इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज आती है कि कैसे जो फूल उनके बालों में रहते हैं ना, वो भी गिरने लग जाते हैं। और एक सेकेंड ना। हम्म, जो फूल उनके बालों में रहते हैं, वो कुछ फूल बोलते हैं कि मैं गिर जाता हूँ, यशोदा मैया को बहुत तकलीफ हो रही है। और कुछ बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं गिरूंगा, क्योंकि यशोदा माई थोड़ा नहीं तो कृष्ण को पकड़ लेगी, मेरे वजन की वजह से ही वो उनको नहीं पकड़ पा रही है ना। कुछ फूल ऐसे सब आपस में बात करने लगते हैं, क्योंकि और क्योंकि क्या रहता है ना कि जो आध्यात्मिक जगत में हर चीजें क्या है, सब जीवित है ना। यहाँ पे जैसे हम लोग बोलेंगे अरे फूल कैसे बात कर सकता है, हाँ, लेकिन आध्यात्मिक जगत में सारी चीजें एक दूसरे के साथ बात करते हैं। सब लोग, जैसे जो मथनी है, मथनी मटके से बात कर सकती है। चम्मच जो है, चम्मच कड़छी से बात कर सकता है ना, या हमसे बात कर सकता है, ऐसे तो वो सब आदान प्रदान होता है। हाँ, तो वहां पे क्या है, हर चीज हर वस्तु में दिव्य है ना। इसीलिए हमको ये समझना चाहिए कैसे वो एक दूसरे से बात कर सकते हैं। तो ऐसे करके फिर माता कैसे यशोदा मैया जाके कृष्ण को पकड़ लेती हैं। और जब पकड़ लेती हैं तो कृष्ण को वो बोलती है, रुको अभी मैं तुम्हें उखल से बांधूंगी ना। उखल मतलब क्या रहता है? उखल मतलब जिसमें पहले अनाजों की कुटाई होती थी, उसको उखल बोलते थे। अनाज या मसाला उसमें कूटते थे। जैसे अभी हम लोग देख सकते हैं खलबट्टा रहता है ना, खलबट्टे के जैसे ही वो था। उसको बोलते हैं उस पे बांधना ना, उखल। हाँ, तो इसी को उखल बंद लीला भी बोलते हैं। और फिर वो रस्सी लेके आती है और भगवान श्री कृष्ण को बांधने का प्रयास करती है। और जब बांधने जाती है तो क्या होता है कि हमेशा वो जो रस्सी है वो 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है ना। तो बोलती हैं दूसरे जो ग्वालन थी वहां की, उनको बोलती कि अरे जाओ अपने घर से रस्सी लेके आओ, ये मेरी रस्सी छोटी पड़ गई। तो सारी जो वहां की गोपियां थी वो भाग के जाती थी, लेके आती रस्सी, वो लोग की रस्सी जॉइंट मार के बांधती थी, फिर भी 2 अंगुल छोटा, 2 अंगुल छोटा। हमेशा इतनी सारी रस्सियां बांध ले, फिर भी भगवान को बांध नहीं पाए। भगवान को कोई बांध सकता है क्या? नहीं ना। लेकिन प्रेम से भगवान को बांध सकते हैं ना, जिसके अंदर प्रेम है, हाँ, जिसके अंदर समर्पण है, जिसके अंदर भक्ति है, वो भगवान को बांध सकता है, और भगवान खुद को उससे बंधवा देते हैं। भगवान अब प्रेमी भक्तों को बहुत कृपा कर देते हैं ना, उनसे बंध जाते हैं। और उनके क्या हो जाते हैं, वो ऐसा भी है कि उनके नौकर हो जाते हैं भगवान, खुद को बेच देते हैं उनसे, कि अब मुझसे ना जो चाहे वो करवा लो तुम, ऐसा। लेकिन जो ऐसे भक्त रहते हैं वो भगवान का फायदा नहीं उठाते हैं। वो भगवान के लिए ही हमेशा कार्य करते हैं, भगवान को ही प्रसन्न करने के लिए कार्य करते रहते हैं। ऐसे तो फिर यशोदा माई की जो रस्सी थी वो हमेशा 2 अंगुल क्या हो रही थी, छोटी पड़ रही थी। तो फिर यशोदा माई जो थी वो थोड़ा परेशान होने लग गई। तो ये परेशानी भगवान श्री कृष्ण देख लेते कि अरे यशोदा मैया तो बहुत परेशान हो रही हैं, अभी मुझे कुछ करना होगा ना। तो ऐसी दो दो स्टोरियां भी आती हैं। तो फिर बोलते हैं ना कि भगवान एक तो है प्रयास, और दूसरा है कृपा ना। यशोदा माई ने क्या किया, प्रयास किया। और कृपा कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे ना। प्रयास क्या किया, बांधने का प्रयास किया उनको ना, श्रम किया। और फिर कृपा क्या, भगवान उनसे बंध गए।
तो भगवान ने क्या किया, चलो मैं बंध जाता हूँ, तो भगवान ने फिर बंध गए उनका परेशान देख के और वो होके। तो इससे हम क्या सीखते हैं कि कैसे 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 यशोदा माई के ऊपर भगवान कृपा करते हैं, और उस कृपा के सहारे यशोदा माई उनको बांध देती है और भगवान जी खुद बंध जाते हैं ना। इसीलिए हमको प्रयास करते रहना चाहिए और कृपा का वेट करना चाहिए। कृपा भगवान अवश्य करेंगे यदि हम निष्काम भाव से भगवान की सेवा कर रहे हैं तो ना। भगवान हमेशा हमारा ध्यान रखेंगे। ठीक है। हमें अपने जीवन में हमेशा ये विश्वास रहना चाहिए कि भगवान मेरी मदद मदद अवश्य करेंगे, कृष्ण अवश्य रक्षिवे ना। ये विश्वास हमेशा हमारे अंदर होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि आ, जैसे हम लोग गार्डन में जाते हैं, हाँ, तो अगर हमारे माता पिता गार्डन में रहते हैं तो हम कितना कॉन्फिडेंट रहते हैं ना, बिंदास यहाँ वहाँ कुछ भी खेलते हैं, झूला झूलते हैं जाके, कहीं भी हम लोग चढ़ते हैं उतरते हैं, स्लाइडिंग पे जाते हैं ना। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, ऐसे बार बार अपने माता पिता को देखते रहते हैं, अरे है ना, अरे किधर गए, नहीं दिखे तो अरे किधर गए, विचलित हो जाते हैं। और जैसे ही दिखते हैं, हाँ है ना, तो हमको क्या लगता है कि अरे चलो मेरी मदर या मेरे माता या मेरे पिता है, उपस्थित है गार्डन में, तो हम बिंदास खेलते हैं। करेक्ट। वैसे ही जैसे हम छोटे हैं अभी, भगवान पर आश्रित, हमको भगवान पे आश्रित होना चाहिए ना, कि भगवान है हमारी रक्षा करने के लिए। क्योंकि क्या है कि माता पिता हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते ना। अभी हम छोटे हैं तो इसीलिए हम लोग को गार्डन में हर जगह हमारे साथ माता पिता रहते हैं। लेकिन जैसे हम बड़े हो जाएंगे, हमको कॉलेज जाना पड़ेगा ना, हमको स्कूल जाना पड़ेगा, तो हमको अकेले जाना पड़ेगा। उस समय अगर हमारे माता पिता नहीं रहेंगे तो क्या हम डर जाएंगे क्या? नहीं, उस समय हमारे साथ कौन रहेगा? भगवान श्री कृष्ण रहेंगे हमारे साथ, वो हमारी रक्षा करेंगे। इसका पूरा विश्वास रहना चाहिए हमको ना। जैसे माता पिता अपने बच्चे के ऊपर कोई आंच नहीं आने देते, वैसे ही श्री कृष्ण अपने भक्तों पे ना, जो उनके ऊपर पूर्णतः आश्रित है, कि भगवान मेरी रक्षा करेंगे, चलो मैं, मुझे किसी का कोई डर नहीं है, भगवान मेरी रक्षा करेंगे, भगवान मुझे बचाएंगे ना। तो भगवान अवश्य बचाएंगे, भगवान अवश्य हमारी रक्षा करेंगे ना। तो ये हमारे अंदर एक विश्वास रहना चाहिए। बच्चों में एक सबसे बड़ा डर क्या रहता है? भूतों का ना। सबको डर लगता है ना, अरे भूत है भूत है। पहले मैं भी छोटा था तो बहुत डरता था कि भूतों से, कहीं अकेले जाने के लिए भी डर लगता था, टॉयलेट जाने के लिए भी डर लगता था। तो ये सबके साथ होता है, ऐसे नहीं कि ये आपके साथ ही हो रहा है। तो छोटा था तो मैं अंधेरे में भी जाने के लिए बहुत डर लगता था ना। तो अभी मैं देखता हूँ मेरा जो बेटा है वो भी ऐसे ही डरते रहता है ना। तो ये नेचुरल है, स्वाभाविक है। तो इसके लिए कुछ ऐसे खुद को एम्बेरस फील करने की जरूरत नहीं है ना, सबके साथ ऐसा होता है। लेकिन इसमें क्या है, अगर हम ऐसे सिचुएशन में आ गए तो क्या है, डरना नहीं है हमको ना। अगर हम कहीं पे अकेले छूट गए, अचानक लाइट चली गई, तो डर नहीं जाना, रोने नहीं लगना जोर से। हमको क्या करना है, कृष्णा 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 चिल्लाना है ना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। कोई भी ऐसी सिचुएशन में जब हम आ गए तो हमको भगवान का तुरंत याद आना चाहिए ना। ऐसे अभी जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है वो मुसलमान हो सकता है वो क्रिश्चियन हो सकता है वो पारसी हो ना। तो आप अपने भगवान को, अपने गॉड को आप लोग याद कर सकते हो। ठीक है। आप लोग ना, जैसे कोई मुसलमान है तो वो क्या अल्लाह करके बोल सकता है ना। ना, और जो क्रिश्चियन है वो क्राइस्ट करके बोल सकता है। भगवान के नामों का जोर से बुलाना है, तो भगवान आएंगे और आपकी रक्षा करेंगे। ऐसी एक स्टोरी है। एक बार क्या होता है कि एक एक स्टूडेंट था आईआईटी मुंबई बॉम्बे में। तो वो खड़ा था गेट के पास में। गेट का जो गेट जिसमें लगा रहता है वो बड़ा सा ऐसा मोटा सा एक पिलर टाइप रहता है ना। उसको पिलर के ऊपर जाके कौन बैठा था? एक चीता बैठा था ना। चीता बैठा था, लेपर्ड था। लेपर्ड बैठा था। और वो लेपर्ड जो था वो इसको देख रहा था। और ये क्या था? ये अरब का लड़का था ना, अरेबियन था ना, मुस्लिम था। और वो खड़ा होके वहां पे फोन पे बातें कर रहा था। और बातें कर रहा था फोन पे अपना, और ये ऊपर से जो लेपर्ड था, लेपर्ड उसको देख रहा था।
और जैसे ही इसको ऐसा इसका बात करते इसका ध्यान गया, और ध्यान गया तो ये पूरा डर गया एकदम, और इसने जोर से चिल्लाया अल्लाह करके। तो वो जो ऊपर बैठा हुआ, वो जो लेपर्ड था वो डर गया और वो भाग गया ना। तो ऐसा है ना, तो इसीलिए हमको भगवान जब दिखते हैं तो हमको कृष्णा, गौरांगा जोर से हमको चिल्लाना है ना, ये सब नाम। अगर हमको डर लग रहा है तो जब ये डर है वो क्या हो जाएगा, चला जाएगा। हाँ? तो इसीलिए हमको डरना नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान नरसिंह देव हमारे साथ है। नरसिंह देव हमेशा हमारी रक्षा करेंगे ना, ये दृढ़ विश्वास रहना चाहिए। जैसे ही ऐसी कुछ मुसीबत में आ गए या कुछ प्रॉब्लम में आ गए, तुरंत भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए, भगवान का जो चित्र है उसको स्मरण करना चाहिए, भगवान का फोटो ध्यान में आना चाहिए ना। मायापुर के नरसिंह देव भगवान है, उनका जो विग्रह है वो हमारे आंखों के सामने आ जाना चाहिए ना। कुछ कोई भी मुसीबत आए हमारे जीवन में, भगवान हमारी रक्षा अवश्य करेंगे, कृष्ण अवश्य रक्षिबे। ठीक है, इसका दृढ़ विश्वास हमको होना चाहिए। ये जब विश्वास आपको रहेगा तो आप अपने जीवन में, अपने उम्र के कौन से भी दहलीज पे, कौन से भी पड़ाव में रहेंगे, आप क्या होंगे, आप कभी डरेंगे नहीं ना। क्यों? क्योंकि आपको पता है मेरे पीछे भगवान है, मुझे संभालने के लिए भगवान है, मेरा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता ना। ऐसा है, तो इसके ऊपर भी हम लोग अभी आगे देखने वाले हैं ना। बाल बांका के ऊपर भी एक ऐसा चीज है जो हम करेंगे तो उससे हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता। बाल बांका करने का मतलब एक बाल भी छोटा कोई तोड़ नहीं सकता, निकाल नहीं सकता। इतनी हमारे अंदर भगवान शक्ति भर देते हैं, और भगवान की शक्ति से हमारे अंदर वो शक्ति आती है। तो वो भी अभी हम देखेंगे। ठीक है। और फिर क्या होता है कि उनको कृपा, हाँ हम लोग थे कि कृपा के ऊपर और भगवान का प्रयास और कृपा ना, तो उसे वो बांध देती। तो उसी को क्या बोला गया, दाम। दाम मतलब रस्सी, उधर मतलब भगवान का पेट। तो यशोदा माई उस दाम, उस रस्सी से भगवान का उधर पेट को बांध देती है ना, और भगवान बंध जाते हैं प्रेम से। ठीक है। और उसके बाद बनने के बाद क्या होता है, एक और लीला आती है। और लीला में क्या है कि वहां पर दो वृक्ष रहते हैं, मणिग्रीव और आ, ये एक मणिग्रीव और नाम याद नहीं आ रहा है, कोई पिंक करेगा मुझे। मणिग्रीव और मुझे न- नल, नल कुबेर नहीं है, मणिग्रीव और नल कुबेर ना, नल कुबेर, हाँ नल कुबेर। नल कुबेर, यस, थैंक यू। नल कुबेर और मणिग्रीव ना, ये दो एक कुबेर के पुत्र रहते हैं दोनों ना। और ये दोनों, एक बार क्या होता है कि ये लोग, कुबेर मतलब कौन, जिसके पास बहुत पूरे धन संपदा सब रहती है ना, उनके पुत्र थे वो लोग। तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ही थोड़े खराब व्यवहार वाले थे, खराब उनका आचरण व्यवहार था ना। तो वो क्या हो गया कि एक बार एक बहुत बड़ी एक नदी है, उस नदी में, शायद मंदाकिनी नदी ना, हिमाचल की, हिमालय के पास में है, उसमें वो नंगे स्नान कर रहे थे। और वहां से, और वो क्या थे, उन्होंने मदिरा का पान किया था ना, उन्होंने थोड़ा मदिरा मतलब शराब के जैसा चीज, उन्होंने नशे वाली चीज पी थी, और उनको कुछ भी भान नहीं था ना। और वो उसी में वो नहा रहे थे, और ऊपर से नारद मुनि जा रहे थे। नारद मुनि ने उनको देखा कि ये लोग नंगे ऐसे मस्ती कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। तो फिर नारद मुनि उनको श्राप देते हैं कि आप लोग जैसे नंगे अभी इसमें नहा रहे हो, वैसे ही आप लोग अभी अगला जीवन आप लोग नंगे ही रहने वाले हो, वृक्ष के रूप में ना। और उनके ऊपर एक कृपा क्या की, क्योंकि जो भी ऐसा श्राप मिलता है हमको किसी वरिष्ठ वैष्णव से ना, तो ऐसा जो श्राप रहता है वो एक्चुअली हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा रहती है ना। वैष्णव की का जो श्राप रहता है वो हमारे बहुत बड़ी कृपा रहती है। कृपा क्या थी उनके लिए, कि उनको भगवान श्री कृष्ण का दर्शन होना था ना। तो वो अभी देखने के लिए, तो वो आदमी जब अगर पेड़ बन के खड़ा हो गया तो 5,000 साल, 1,000 साल वो पेड़ के जैसे ही खड़ा रहेगा ना। कितना बड़ा एक्चुअली श्राप हो गया है। लेकिन सबसे बड़ी कृपा क्या थी, भगवान का दर्शन
तो जब भगवान छोटे थे, जब भगवान को उखल में बांध दिया, तो ये वृक्ष भी, दोनों वृक्ष नलकुबेर और मणिग्रीव, ये दोनों वहां पे खड़े थे। और जब ये खड़े थे, तो जो उखल लेके, भगवान जी छोटे थे ना, गिर के वीर के कैसे भी उखल को खींच के लाए और उस दोनों वृक्षों को अपने उखल बीच में लगा दिए। हाँ, उस दोनों वृक्ष था, दोनों वृक्ष के पीछे उखल को फंसा दिया और जोर से खींचे, और दोनों वृक्ष क्या हुए, धड़ाम से गिर पड़े। और धड़ाम से गिर के उसमें से सुंदर दो देवता बाहर आए ना, नल कुबेर और मणिग्रीव आए, और वो भगवान को प्रणाम किए और बहुत तृप्त हो गए कि मुझे आपका बाल रूप का दर्शन मिल गया हम लोग को, हम लोग बहुत कृतार्थ हो गए। तो भगवान ने क्या किया, उन दोनों का उद्धार भी किया ना। तो ये है दामोदर लीला, भगवान ने मणिग्रीव और नल कुबेर का उद्धार भी कर दिया। और हम लोग अगर वृंदावन में जाएंगे तो वहां पर ये उखल अभी भी है ना। वहां पे एक, जहाँ पे भगवान का गांव था गोकुल के पास में, तो वहां पर अभी भी ये उखल रखा हुआ है। तो वहां पे जाके हम इस उखल का वृंदावन में दर्शन कर सकते हैं। बहुत सुंदर दर्शन रहता है और बहुत आनंद आता है वहां पे। ऐसा है। तो अभी मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ और आगे का पढ़ते हैं ना। तो ये दामोदर लीला की स्टोरी, ये दामोदर लीला की स्टोरी जो आपने अभी श्रवण की, इसको हमको अपने मित्रों को भी सुनाना है ना, अपने दोस्तों को भी सुनाना है, शेयर करना, आप उन लोग को बताना कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस कार्तिक मंथ ना, हाउ इम्पोर्टेंट दिस मंथ इज ना। यू शुड टेल टू योर फ्रेंड्स, योर रिलेटिव्स, रिलेटिव्स लोग को कॉल करो, बताओ उनको ये स्टोरी कि आपने आज ये स्टोरी सीखी है, सुनी है ना। उनको अपने लैंग्वेज में, जैसा आप हो सकते हो कि आप मराठी बोलते हो, मराठी में सुनाओ, कोई हो सकता है कन्नड़ बोलता हो, कन्नड़ में सुनाओ, कोई हिंदी में, कोई इंग्लिश में ना, जो भी जिस लैंग्वेज में है, ये लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज में आप ये स्टोरी अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को सुनाइए। ठीक है, इससे आपको बहुत कृपा मिलेगी। ठीक है, तो ये छोटी सी लीला थी। तो अभी हम लोग बेनिफिट्स भी समझ गए, क्या बेनिफिट्स है ना। और हम लोग अभी चलते हैं इसका सिग्निफिकेंस ना। सिग्निफिकेंस मतलब क्या है, ये भी एक बेनिफिट के जैसा ही होता है कि इसका क्या बेनिफिट है, वो भी हम लोग अभी देखेंगे। ठीक है, तो इसका जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है, अभी हम लोग वो देखेंगे। स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस क्या है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो लोग क्या कर सकते हैं कि वो लोग प्रेयर्स कर सकते हैं ना, मेडिटेशन कर सकते हैं, और हमारे अंदर क्या चल रहा है इसका हम लोग मूल्यांकन कर सकते हैं ना, हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या हम शांत है क्या, और शांत कैसे हुए ना। जैसे हम भगवान के ऊपर ध्यान लगाएंगे ना, भगवान के नामों का जप करेंगे ना, भगवान को हम लोग, आगे आएगा वो सब भी, तो क्या क्या हमको करना चाहिए ना, हाउ टू ऑब्जर्व कार्तिक और दामोदर मास, कैसे ऑब्जर्व करना है, उसमें ये सब चीजें मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसका इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है ना। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस हमने क्या देखा कि हमको स्टेबिलिटी मिलेगी, शांति मिलेगी हमको ना, और हमको भगवान के धाम में जाने का अवसर मिलेगा, भगवान के अबोर्ड में। तो ये है। और फिर फेस्टिवल एंड सेलिब्रेशन ना, इसमें क्या क्या फेस्टिवल्स आते हैं, इसमें दिवाली आता है, गोवर्धन पूजा आता है, कार्तिक पूर्णिमा आती है ना। और इन सब, जब ये सब आते हैं तो क्या होता है, हमारे फैमिली ना और हमारी कम्युनिटीज, हम लोग सब एक साथ आते हैं। करेक्ट, हम लोग कैसे है कि हम लोग कभी दूर कहीं पढ़ रहे हैं ना, हमारे फैमिली, हमारे पिताजी कहीं और जगह पे काम कर रहे हैं, तो वो हमारे पिता, माता पिता सब एक साथ आते हैं, चाचा चाची जो भी, अगर हम लोग जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं तो सब लोग साथ में इकट्ठा होते हैं और ये त्योहार मनाते हैं। हाँ, तो इसीलिए इसका स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस और इसका फेस्टिवल सेलिब्रेशन, इससे बहुत महत्व है ना। जब हम साथ में आते तो क्या होता है, प्रेम बढ़ता है ना, एक दूसरे के साथ जब हम लोग ऐसे ये सब चीजें सेलिब्रेट करते हैं ना। और सेलिब्रेट कैसे करते हैं, भगवान को याद करके ना। कोई भी हम लोग जब सेलिब्रेशन करते हैं तो उसके पीछे का क्या महत्व है, ये जान के हमको सेलिब्रेट करना चाहिए ना। तब हमको उसकी कृपा मिलती है, और ज्यादा कृपा मिलती है। नहीं जान के करेंगे तो भी कृपा मिलेगी, लेकिन जान के करेंगे तो और ज्यादा कृपा मिलती है। बस मुझे 1 मिनट देना।
सॉरी। तो मुझे हम लोग को और ज्यादा कृपा मिलती है ना, अगर हम लोग साथ में आते हैं और सब लोग को, बड़ों को सबको रिस्पेक्ट करते हैं ना, दादा दादी, नाना नानी, सबको हमको रिस्पेक्ट जब हम करते हैं, तो हमको भगवान की बहुत कृपा मिलती है। ठीक है। और क्या होता है कि हमारा सबके साथ बॉन्ड अच्छा होता है ना, सबके साथ अच्छा लव एक्सचेंज होता है। ऐसे इसीलिए हमको हमेशा ये सारे त्योहार हमको मनाने चाहिए अच्छे से एकदम। और फिर आता है कि लर्न ऑफ डिसिप्लिन ना, हम लोग डिसिप्लिन सीखते हैं। डिसिप्लिन कैसे सीखते हैं? हम लोग इसमें डिसिप्लिन लेते हैं कि हम लोग एक माला करेंगे, चार माला करेंगे, हम लोग ये मेरी फेवरेट चीज़ों को खाना छोड़ देंगे ना, और ऐसे करके हम लोग थोड़ा तपस्या करते हैं इसमें। मैं एक भगवत गीता का एक श्लोक रोज पढ़ूंगा, ऐसे सब हम लोग कमिटमेंट देते हैं। इससे क्या होता है, हम डिसिप्लिन सीखते हैं ना। और इस मंथ में मुझे ज्यादा क्रोध नहीं करना है, मुझे ज्यादा गुस्सा नहीं करना है, गाली नहीं देना है, किसी को मारपीट नहीं करना है किसी के साथ में ना। जब हम ऐसा हम लोग प्रण लेते हैं ना, ऐसा हम लोग जब संकल्प लेते हैं, तो उसका हमको बेनिफिट मिलता है। क्या? हम डिसिप्लिन्ड हो जाते हैं। जो बच्चा डिसिप्लिन्ड रहता है वो बहुत ज्यादा ग्रो करता है। ठीक है। इसीलिए डिसिप्लिन मतलब क्या? रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना, यही डिसिप्लिन है। किसी ने हमको, बड़े ने बोला है ऐसा करने के लिए, हमको वैसा करना चाहिए। हमको ऐसे नहीं कि मैं अपने मन से कुछ भी करूंगा, ऐसा नहीं करना चाहिए ना। वी हैव टू फॉलो ऑर्डर्स ऑफ आवर सीनियर्स ना, आवर पेरेंट्स, आवर टीचर्स। वी शुड नॉट गो अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ आवर टीचर्स, our principals na, our elder brother, our elder sister, our elder grandparents na, we should never go against their orders, so we have to follow their orders. Mm. Always remember that you should never do any such thing which you wish to do na. You have to take permission of your parents, your seniors, then you start that thing. So what will happen? You will get the grace now, you will get the mercy of them, mercy of their with you. So that activity will be successful. So always remember to take the blessings of elders before doing anything, and you should not do any such activity which will hurt anyone. Hmm? You should never do such activity. If it is hurting someone, means it is not good activity. Krishna will never be happy with your activity, with that activity. So that's why the activity which pleases your near and dear ones, that activity you have to perform. That activity will please Krishna also, because it's pleasing to your near and dear ones. Huh? So that is how we have to do the activities in our life. Again, we have gratitude and giving back ना. What is gratitude? Gratitude का मतलब है कृतज्ञता, और गिविंग बैक, कृतज्ञता मतलब क्या? कि हमको देखो कितना सनलाइट मिल रहा है ना, और सनलाइट की वजह से क्या होता है, दिन में क्या हम लोग ट्यूबलाइट चालू करके बैठते हैं क्या? हाँ, बल्ब लगा के बैठते हैं क्या? नहीं। तो इससे क्या हो रहा है, हमारा जो लाइट बिल है वो कम आता है, बराबर सेव हो रहा है ना, सेविंग हो रहा है। किस वजह से हो रहा है? भगवान इतना लाइट दे रहे हैं बाहर से। हाँ, इसकी वजह से हमको इतना हमारा सेविंग हो जा रहा है। तो इसके लिए हमको क्या रहना चाहिए? भगवान से कृतज्ञ रहना चाहिए। हमको पीने के लिए मीठा जल मिल रहा है, अगर मीठा जल भगवान नहीं देते तो क्या होता? हमको हमको खारा पानी पीना पड़ता। खारा पानी आप पी पाते क्या? तुरंत उल्टी हो जाती है हमको ना। तो इसीलिए ये सब चीजों के लिए हमको भगवान को के प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। और फिर अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है तो हमको क्या करना चाहिए? दान देना चाहिए ना, चैरिटी करनी चाहिए। हमको दूसरों की मदद करनी चाहिए। ये मदद करने से क्या होगा? हमारे अंदर एम्पैथी आएगी, कंपैशन, करुणा आएगा ना। और एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या? दूसरों के प्रति हमारा व्यवहार कैसा हो ना, उनकी मदद करने की भावना। यदि कोई अंधा रोड क्रॉस कर रहा है, उसको क्रॉस करवाना। यही यदि कोई बूढ़ा व्यक्ति ना, जो बहुत उम्र जिसकी बहुत ज्यादा है, वो ठीक से चल नहीं पा रहा, उसको पकड़ के धीरे से रोड क्रॉस करवा देना। ये सब हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना।
उनको मदद करवाना और भगवान के बारे में बताना उनको, उनको बिठाना, उनसे भगवान के बारे में चर्चा करना, भगवान के बारे में बताना ना। तो ये सब क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना। ये क्या कर रहे हैं हम अब, जो भी हमने भगवान से ले रहे हैं तो हम क्या है, रेडी है ना। तो हम अब भगवान का से जो लिया है अब हम वो सबके साथ शेयर कर रहे हैं हाँ? ऐसे तो हमको शेयर भी करना चाहिए। ठीक है। और फिर आता है कल्चरल अवेयरनेस ना। ये फॉलो करने से क्या होता है, हमको कल्चर के बारे में पता चलता है ना। कल्चर क्या है कि जैसे जैसे ये कार्तिक मास के बारे में हमको पता चला, करेक्ट। अगर हम इसको नहीं जानते, नहीं सुनते ना, तो इसके बारे में हमको पता नहीं चलता है कितना ऑस्पिशियस है, कितना कृपा प्रदान करने वाला है ना। ये इसके बारे में हमको पता नहीं चलता ना। पहले के जो हमारे दादा दादी थे, इसको बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करते थे। वो लोग सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ के नहाते थे और फिर बैठ के भगवान के नामों का कीर्तन करते थे ना, हमारे दादा दादी। लेकिन क्या हो गया, धीरे धीरे हमारे जो माता पिता हैं, उनको धीरे धीरे ये सब चीजों से वो दूर होते गए। और क्या हो गया, अल्टीमेटली हम लोग भी धीरे धीरे इन सब चीजों से हम हमारा नाता टूटते गया है। हमको भी ये नाता फिर से स्टैब्लिश करना है, ठीक है। इसको फिर से हमको भगवान से जोड़ना है, फिर से हमको अपने कल्चर को अपनाना है ना। कल्चर मतलब क्या, संस्कृति। अपने संस्कृति से हमको फिर से जुड़ना है ना। कैसे भी करके हमको फिर से जुड़ना है, और जुड़ने के लिए फिर हमको ऐसे सेशंस को अटेंड करना है, सीखना है, हमको सुनना है। तो हम धीरे धीरे अपने कल्चर से हम लोग नजदीक आएंगे ना। क्योंकि अगर हमें अपना कल्चर पता नहीं रहेगा तो क्या होगा, आपको कोई दूसरा व्यक्ति अपना कल्चर सिखा देगा, ठीक है। इसीलिए आपको अपना कल्चर, आप ये कार्तिक मास क्यों सेलिब्रेट कर रहे हो ना, आप ये तिलक क्यों धारण कर रहे हो, हाँ, आप मंदिर क्यों जाते हो, ये सब चीजों का प्रश्न हमको पूछना चाहिए और इसका जवाब हमारे पास रेडी रहना चाहिए हमेशा। हाँ? तो जैसे आप ऐसे सेशंस जब अटेंड करोगे, धीरे धीरे मैं आप लोग को जैसे कुछ कुछ चीजें सिखाता हूँ, तो ये जब सीखोगे तो आप लोग कॉन्फिडेंट रहोगे ना, आप लोग को कोई बहका नहीं पाएगा। हम्म। ठीक है। तो इसके लिए हमको कल्चरल अवेयरनेस क्रिएट होता है इससे ना, ये मंथ को फॉलो करने से ना। कैसे हम लोग को अभी आएगा क्या, ये आएगा गोपाष्टमी, जिसमें हम लोग जो गौवे हैं ना, गाय बैल, इनकी पूजा करते हैं हम लोग। क्यों पूजा करते हैं ना, ये सब का महात्म्य है ना। गोपाष्टमी में उनकी आरती होती है, और बहुत वहां पे जाके सब लोग दान करते हैं ना, गौओं की रक्षा करने का प्रण लेते हैं ना, उनको घास खिलाते हैं, उनको अच्छे अच्छे नैवेद्य खिलाते हैं। तो ये सब करने से क्या होता है, कृपा मिलती है ना। क्योंकि गैया जो है वो कृष्ण को बहुत प्रिय है। तो जो गाय की सेवा करता है, भगवान उससे बहुत प्रसन्न रहते हैं ना? तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जैसे हम लोग गाय पाल सकते हैं क्या, अभी नहीं पाल सकते ना, अपने घर में लाके हम लोग नहीं बांध सकते। तो हमको क्या करना चाहिए, जहाँ पे गाय है वहां पे जाके हमको थोड़ा दान देना चाहिए ना, गाय को घास खिलाना चाहिए ना। गाय के लिए हमको गाय के जो वहाँ पे प्रोडक्ट्स है, वो प्रोडक्ट्स हमको परचेस करना चाहिए, बाय करना चाहिए, और उनका यूज करना चाहिए, गो प्रोडक्ट्स का ना। इससे हमको लाभ मिलेगा, ठीक है। और इससे फिर गायों का संरक्षण भी होगा। हम्म। ये सब चीजें आती हैं किसमें, सिग्निफिकेंस ऑफ स्टूडेंट्स ना। और जैसे और एक क्या इंपॉर्टेंट है, जब गाय को हम लोग टच करते हैं तो हमारे अंदर सतोगुण आता है। तो गाय को जब भी आप गाय से मिलो, कहीं भी मिलो, डरने का नहीं, गाय आपको मारेगी नहीं। जो मारने वाली गाय रहती है ना, वो हमको समझ जाता है, अरे ये तो बट जो ऐसे ऐसे पहले ही हिलाने लग जाएगी, अपना सींग लेके ऐसे ऐसे भागेगी ना। तो उससे हमको थोड़ा सतर्क रहना है, उसके पास में नहीं जाना है। लेकिन जो गाय थोड़ा, जैसे हम लोग देखते हैं कि कुछ कुछ गायें रहती है ना, बहुत शांत रहती है ना, तो उन गायों को जाके थोड़ा सहलाना चाहिए हमको। उनके गले की इधर ऐसे ऐसे जब करेंगे ना गायों को, बहुत अच्छा लगता है ना। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे गायों के गले पे ऐसे ऐसे हाथ घुमाने का, तो इससे क्या होगा, हमारे अंदर सतोगुण आएगा ना। सतोगुण मतलब क्या, बहुत अच्छे गुण का प्रादुर्भाव हमारे अंदर होगा। तो इससे क्या होगा, हमारे को लोग को बहुत कृपा भी मिलेगी और हमारा नेचर बहुत अच्छा हो जाएगा ना। इसलिए गाय की थोड़ा सेवा करनी चाहिए ना। तो हमारा क्रोध आना कम हो जाएगा, हमारे मुख से जो भी निकलेगा वो मीठा मीठा निकलने लग जाएगा, मीठा बोलने लग जाएंगे हम ना, गायों के संग में रहने से। इसीलिए गाय जहां भी दिखे, जाके उसको टच कर लिया करो, ठीक है। डरने का नहीं,
और ज्यादा थोड़ा दूर से टच कर लो ना, ऐसे सहला दो। अगर लग रहा है कि वो कुछ मार भी नहीं रही है तो जाके अच्छे से सहलाओ फिर। ठीक है, ये करना आप लोग। हम्म। अभी आगे आता है हाउ टू ऑब्जर्व कार्तिक और दामोदर मास ना, ये देखते हैं हम लोग। तो कैसे इसको हमको इसका पालन करना है इस कार्तिक महीने का ना। कार्तिक महीने का पालन कैसे करेंगे हम लोग? चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, भगवान के नामों का जप करेंगे हम लोग ना। भगवान का नाम का जप कैसे करेंगे? हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार हम लोग भगवान के नामों का जप करना चाहिए इस महीने में हमको ना। और आगे देखते हैं क्या बताया गया है। और आगे कहते हैं कि 1 राउंड इज इक्विवेलेंट टू 1 लाख राउंड्स। सोचिए, अगर हम खाली एक राउंड इस महीने में अगर करेंगे ना, एक दिन में अगर एक राउंड भी करते हैं तो 1 लाख राउंड के बराबर है। सोचिए कितना महत्व है इसमें ना, इस मंथ में। बाकी दिन आप करोगे ना, अगर कार्तिक महीने में ना करके बाकी के महीनों में करोगे तो उस एक माले का जो इफेक्ट है वो एक ही माला रहेगा ना। लेकिन अगर वही एक माला हम लोग कार्तिक महीने में करते हैं तो 1 लाख राउंड के बराबर हो जाएगा। सोचिए कितनी शक्ति है ना, कितना कितना मतलब भगवान ने मर्सी दिया है इसमें। 1 लाख राउंड सोचिए। हाँ, तो इसीलिए हमको इसको हमको करना चाहिए। हाँ। हम्म। और है कि इंक्रीज द राउंड इन दिस मंथ। जैसे आप लोग रोज एक माला करते होंगे, कोई बच्चे 4 माला करते होंगे ना, 4 राउंड्स करते होंगे, तो आपको क्या करना है इस मंथ में? राउंड्स थोड़े बढ़ा देने हैं। क्योंकि जब इतना बेनिफिट है, 1 लाख के बराबर हो रहा है, तो हमको बढ़ाना चाहिए ना, कि कम ही रखना चाहिए? नहीं, हमको बढ़ाना चाहिए ना। तो जो 4 कर रहे हो वो 8 कर दो, जो 2 कर रहे हो उसको 4 कर दो, जो 1 कर रहा है 2 कर दो ना। ज्यादा से ज्यादा चैंटिंग करो इस मंथ में। जितना ज्यादा चैंटिंग करोगे उतना ज्यादा बेनिफिट्स आपको लोग को मिलेगा ना इस मंथ में। इसीलिए ये मंथ बहुत ही पावन है और इस मंथ को हमको छोड़ना नहीं है। कैसे भी करके ज्यादा से ज्यादा हमको चैंटिंग करनी है। ठीक है। तो ये इसका बेनिफिट है, चैंटिंग द होली नेम्स। और कैसे? थोड़ा नहा के धो के ना, नहा के बैठना है हमको, क्लीन होके अच्छे से बैठ के हमको चैंटिंग करना है ना। आप लोग स्कूल जाने के पहले 1 2 राउंड कर लो, फिर रात को सोने के पहले 1 2 राउंड कर लो। ऐसे ही आपके 4 राउंड हो जाएंगे। और बीच में एक आध बार समय मिला तो और 1 2 राउंड कर लो ना। ऐसे करके आप लोग आराम से 7 8 राउंड कर सकते हो। ठीक है। आप लोग को इतना ये मंथ में करना ही चाहिए। ठीक है, कौन कौन करेगा चैट में डालो। कौन कौन चैंटिंग करेंगे? आय करके डालो, आय, खाली आय। यस। थैंक यू पार्थ गौरांग। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ऐसे ही आप लोग को फिर चैंटिंग ये मंथ में बढ़ा देना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करेंगे उतना हमारे लिए इसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा होगा। इसके लिए तो इसको हम लोग को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा चैंटिंग करना है। थैंक यू सोहम। थैंक यू। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे टेकिंग संकल्प। हाँ, हमको संकल्प लेना है। क्या संकल्प लेंगे हम लोग ना? ट्राई टू स्टॉप ईटिंग एनी ऑफ योर फेवरेट फूड फॉर 1 मंथ। कोई भी आपका फेवरेट फूड रहेगा। आपका फेवरेट फूड क्या है मुझे पता है। आप लोग का फेवरेट फूड है चॉकलेट ना। तो चॉकलेट छोड़ सकते हो 1 महीने के लिए। हाँ, कौन कौन छोड़ेगा? चैट बॉक्स में डालो आए करके। तो छोड़ना पड़ेगा जो इधर कमिटमेंट देगा तो। वेरी गुड। थैंक यू सो मच।
थैंक यू। तो इस मंथ में सब बच्चों को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग चॉकलेट खाना छोड़ दो, 1 महीना। चॉकलेट कोई अच्छी चीज़ नहीं है एक्चुअली, चॉकलेट हमको नहीं खाना चाहिए ना, बहुत ही मजबूरी में चॉकलेट खाना चाहिए, क्योंकि कैसे ना बोला गया है कि हमको हमेशा ताज़ा चीज़ खानी चाहिए, जो ताज़ा है ना, जो खाली 1-2 दिन तक रह सकती है उसके बाद सड़ जाती है, वैसी चीज़ नहीं खानी चाहिए। और जो 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 20 दिन, 1 महीना तक रहती है, मतलब वो सड़ी हुई चीज़ है एक्चुअली ना। तो चॉकलेट ऐसी चीज़ है, लेकिन फिर भी हम उसको बहुत चाव से खाते हैं ना, ऐसा है। लेकिन अगर हो सके तो कम से कम खाने की कोशिश किया करो, ऐसे नहीं कि हमेशा बोलते ना लालची बन के ज्यादा से ज्यादा चॉकलेट मिल जाए कहीं से भी लेके दब 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 पूरे खा जाओ, ऐसे नहीं करना चाहिए। हाँ, ठीक है। तो ये सब लोग आज एक हम लोग प्रतिज्ञा लेते हैं, ठीक है, हम लोग एक संकल्प लेते हैं, ट्राई करेंगे ना ज्यादा से कम खाने का। एटलीस्ट ट्राई करो। गलती से खा लिया तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे नहीं कि गलती से खा लिया तो अभी मेरा प्रण तो टूट गया, अब मैं खाना चालू कर दूंगा ना। ऐसा बिल्कुल नहीं करना आपको। एक बार गलती से खा लिए तो ठीक है, लेकिन दोबारा नहीं खाना। ट्राई करना है इसको फॉलो करने के लिए, आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। तो ये क्या है, तपस्या है। ये तपस्या जब आप करोगे तो इसका बेनिफिट आप लोग को दिखेगा आपके जीवन में ना, आपको एक अद्भुत शक्ति आएगी आपके अंदर एक, जिससे कि आप लोग का हो सकता है स्मरण शक्ति बढ़ जाए, आपका कंसंट्रेशन लेवल बढ़ जाए इससे ना, एक ही खाली ये तपस्या करने से। दूसरा क्या है, चैंट स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स डेली विदाउट फेल इन दिस मंथ ना। स्पेसिफिक करो कि मैं 2 राउंड रोज करूंगा। आज मैं ये प्रतिज्ञा लेता हूं, आज ये मैं संकल्प लेता हूं कि मैं 2 राउंड रोज करूंगा। तो ये 2 राउंड अगर आप करोगे ना, तो फिर सोच लीजिए आप 2 लाख राउंड कर रहे हो। 2 लाख राउंड्स ना, इतना बेनिफिट है इसका। तो एटलीस्ट आप अगर जो कोई भी नहीं कर रहा तो एटलीस्ट 2 करो, जो 2 कर रहे हो 4 करो, जो 4 करो 8 राउंड करो, ठीक है। समय अपने आप निकल आएगा, भगवान आपकी व्यवस्था करेंगी समय की, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, खाली आप संकल्प लो। उस संकल्प को कौन पूरा करेंगे, भगवान पूरा करेंगे, आपको वो शक्ति देंगे उस संकल्प को पूरा करने की, ठीक है। इस प्रकार हम इसको करेंगे ना, संकल्प लेंगे। और फिर आगे आता है ऑब्जर्विंग फास्ट इन एकादशी। जो भी इस कार्तिक महीने में एकादशी आएगी, उस एकादशी में हमको अन्न नहीं खाना है, ठीक है, बिल्कुल अन्न नहीं खाना है ना। खाली हमको क्या खाना है, फल फ्रूट ना, या हो सकता है हमको कुछ सिंघाड़े के आटे का कुछ खा लो ना, या साबूदाने का कुछ खा लो, साबूदाना वड़ा है, साबूदाना खिचड़ी, ऐसा कुछ खाना, लेकिन अन्न मत खाना, ठीक है। अन्न से बचना। और उस दिन और ज्यादा थोड़ा जप कर देना एकादशी के दिन ना, जैसे आपने 8 किया तो एकादशी के दिन 12 कर दो, 10 कर दो ना। ऐसे जब करोगे तो उसमें आपको और शक्ति मिलेगी और ताकत आपकी बढ़ेगी। तो ये सब क्या है, एक्चुअली तपस्या है ना। हमारा जीवन ही क्या है, एक तपस्या है। जितना ज्यादा से ज्यादा तप जप हम करेंगे, उतना हमारे जीवन में हमको शक्ति आएगी, हमको ताकत आएगी। हम्म, उतना हमारे जीवन में शक्ति ताकत आएगी। हाँ, तो ये है फास्टिंग फ्रॉम ग्रेन्स। और फिर क्या है, ऑफर फूड टू श्री राधा एंड कृष्णा। भगवान को क्या देना है, भोग लगाना है। ठीक है। तो ये समझ गया ना, एकादशी का व्रत का पालन करना है, कार्तिक महीने में स्पेशली रखना है हमको। और आप लोगों के लिए हमेशा रखना है। ऐसे नहीं एकादशी के लिए मैं बोल रहा हूँ खाली कार्तिक महीने में रखो, नहीं, आप लोग के लिए हर एकादशी को फॉलो करना है, ठीक है। लेकिन जो हर एकादशी नहीं कर पाते ना, जो मेरा वीडियो यूट्यूब पे या अलग सोशल साइट्स पे देखने वाले हैं, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि एटलीस्ट आप लोग इस कार्तिक महीने का जो एकादशी है उसको आप लोग प्लीज फॉलो करना ना। लेकिन जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, जो मेरे साथ इट्स किड्स लाइफस्टाइल हब के साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए ये स्ट्रिक्टली है ना, क्या कि आपको हर एकादशी को उपवास रखना है ना, आपके लिए कोई लिबर्टी नहीं है। ठीक है। तो आप लोग को हर एकादशी में ऑब्जर्व करना है फास्ट ना। उसमें आप आलू और ये सब चीजें खा सकते हैं, बहुत सारा आइटम रहता है, ऐसे नहीं कि फास्टिंग में आपको पूरा खाली पेट रहना है ना, ऐसा नहीं है, आप लोग को रहना है, खाली अन्न नहीं खाना है ना, जो अन्न खाएगा उसको पाप लगेगा ना। और क्या है फिर उसके बाद, ऑफर फूड टू श्री कृष्ण। भगवान को भोग लगाना है।
ना। हम लोग भोग कैसे लगाते हैं भगवान को? भगवान को भोग लगाते हैं हम लोग, कोई भी जो भी हमारे घर में पदार्थ है उसको हम लोग क्या करते हैं, भगवान को सामने रखते हैं, उसके ऊपर तुलसी का पत्र रखते हैं और फिर हम लोग उसको भगवान को ऑफर करते हैं ना। इससे क्या होते हैं, भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ना, भगवान उसको स्वीकार करते हैं जो भी हमारे घर में है। जैसे हमारे घर में अगर राइस है ना, तो राइस को भगवान के आगे चढ़ा दो। पोहा है, पोहा को भगवान के आगे तुलसी दल रख के चढ़ा दो। लेकिन एक याद रखना है कि हमको लहसुन और कांदे से बना, ओनियन गार्लिक से बना हुआ भोजन नहीं चढ़ाना है ना। तो उसमें का कुछ एक आइटम आप चढ़ा देते, राइस में हम कभी लहसुन कांदा नहीं डालते, तो राइस का ही भोग लगा दो ना, एक पानी का लगा दो, एक फ्रूट भगवान के आगे रख दो ना। भगवान बोले हैं ना, शास्त्रों में कहा गया है कि जो भगवान को भोग लगाता है, हाँ, ऐसे इस प्रकार जो भगवान को भोग लगाता है उसको, उसका कभी बाल बांका नहीं हो सकता है ना। बाल बांके का हमने डिस्कस किया था ना। कोई हमको छू भी नहीं सकता, कोई हमको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं दे सकता, कोई मार नहीं सकता है ना, कोई हमारा अनर्थ नहीं कर सकता है। इतनी शक्ति है भगवान को इस कार्तिक महीने में भोग लगाने की। इसीलिए आप लोग थोड़ा भगवान को भोग लगाइए इस कार्तिक महीने में, ठीक है ना। बिल्कुल मत भूलना, कुछ भी आपके पास छोटा सा खाली 2 बादाम है, 2 बादाम को लेके भगवान के आगे रख के उसके ऊपर तुलसी पत्र लगा के भगवान का थोड़ा, भगवान का नाम ले लो और भगवान को ऑफर कर दो ना। तो भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। कुछ भी नहीं है, अगर वो भी नहीं है तो क्या करो, पानी लो, एक ग्लास लो, स्वच्छ साफ ग्लास लेके भगवान के आगे रखो, उसमें तुलसी का एक पत्ती डालो और फिर वो भगवान को ऑफर कर दो। भगवान ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान पत्र पुष्प फल तोयम, मतलब पानी से भी भगवान प्रसन्न हो जाते, खुश हो जाते ना। तो इस प्रकार हमको भगवान को कुछ ना कुछ इस मंथ में रोज ऑफर करना है, ठीक है। तो आप लोग प्लीज कुछ ना कुछ भगवान को ऑफर करिएगा और उसको फिर प्रसाद के रूप में उसको ग्रहण करिएगा ना। हमको हमेशा प्रसाद खाना चाहिए ना, जो भी भगवान को अर्पित है उस वस्तु को प्रसाद रूप में हमको स्वीकार करना चाहिए। प्रसाद के अलावा कुछ भी नहीं खाना चाहिए हमको। हाँ, जैसे एक श्लोक भी आता है ना, यज्ञ शिष्टा शिनो संतो, कि किल सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वगम पापा पचन्ते आत्म कारणात् ना। जो भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो क्या खाता है, पाप खाता है, ऐसे भगवान बोले। हम्म यज्ञ शिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुजन्ते ते त्वघं पापा पचन्ते आत्म कारणात् ना। ये श्लोक है कि भगवान को जैसे यज्ञ होता है ना, तो यज्ञ में देखे हमने फल सब रखते हैं ना, चारों बाजू से फल फ्रूट का उनको भोग लगता है। यज्ञ, यज्ञ मतलब क्या, विष्णु स्वयं भगवान है यज्ञ। तो उसको हम लोग सब अर्पित करते हैं और फिर उसका हम लोग प्रसाद के रूप में सेवन करते हैं। ऐसे ही हम इसको घर में भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हमारा जो दिमाग है बहुत अच्छा होगा, बहुत तेज होगा। और भगवान को हमेशा शुद्ध शाकाहारी, शाकाहारी भोजन का भोग लगाना चाहिए ना, मांसाहारी भोजन नहीं, उसका नहीं लगाना चाहिए। और हमको जिसके लिए बहुत मजबूरी है, जिसको खाना है वो खा सकता है, लेकिन अगर ऐसी कोई मजबूरी नहीं है तो हमको मांसाहार भोजन नहीं करना चाहिए ना। हमको किसी की जीव की हत्या करके हमको नहीं खाना चाहिए, इससे हमको बचना चाहिए। बहुत बहुत बचना चाहिए इससे। नहीं तो क्या होगा, हमको पाप लगेगा। पाप लगेगा तो हमको हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे। हम लोग क्या बोलते हैं, अरे मैंने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, मेरे जीवन में तकलीफ क्यों आ रही है ना, ऐसा बोलते हैं ना। तो उनको बोलना है कि आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग अनजाने में पाप कर रहे हो, अनजाने में आप लोग ना मांसाहार कर रहे हो। और मांसाहार करने से क्या हो रहा है, आप एक जीव की, जीव को तकलीफ दे रहे हो। वो तकलीफ देने से क्या हो रहा है, आपका जो, आपका, आपको संकट आ रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। तो पहले आपको वो बंद करना चाहिए, तब आपको तकलीफ नहीं आएगी। ऐसे, ठीक है। तो ये हमको है कि भगवान को भोग लगाना। और फिर आता है चैंट एटलीस्ट वन श्लोका फ्रॉम श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम एवरी डे ना। ये निश्चित कर लो, ये निर्धारित कर लो कि कम से कम हम लोग एक श्लोका ना, एक श्लोक हम लोग कम से कम भगवत गीता से पढ़े।
कम से कम एक श्लोक हम श्रीमद् भागवतम से पढ़े। दोनों में से एक ही श्लोक खाली दिन भर में पढ़ दोगे चलेगा ना, खाली एक श्लोक पढ़ो और उसका अर्थ समझो और उसके बारे में क्या बताया गया है ना, उसके बारे में जानना, सुनना, उसको समझना और फिर उसको अपने जीवन में उतारना ना। अगर हम अभी उतार भी नहीं पा रहे तो भी चलेगा, खाली आप पढ़िए ना। भगवान क्या बोले हैं, जो मेरा आधा श्लोक भी पढ़ देता है उसके ऊपर मैं बहुत बड़ी कृपा कर देता हूँ इस कार्तिक महीने में। खाली आधा श्लोक पढ़ के, आधा पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला ना, उसके ऊपर ही बहुत बड़ी कृपा कर देते भगवान। तो हम तो अगर पूरा श्लोक पढ़ देंगे और एक के बजाय दो पढ़ देंगे तो सोचिए हमारे ऊपर कितनी कृपा हो जाएगी भगवान की ना, जिसका हम आकलन नहीं कर सकते हैं, जिसको हम सोच भी नहीं सकते हैं, जिसका आकलन नहीं कर सकते हम लोग। हाँ? इतनी कृपा भगवान की मिल जाएगी खाली एक श्लोक को, श्लोक का उच्चारण करने से, उसका अर्थ समझने से। हम्म। तो प्लीज आप लोग से रिक्वेस्ट है सारे बच्चों से कि रोज एक श्लोक पढ़िए। मैं कोशिश करूंगा कि रोज एक श्लोक का देखता हूँ मैं, अगर क्लास ओपन कर पाऊँ तो मैं एक श्लोक का, थोड़ा मेरा बिजी शेड्यूल रहता है इसलिए मैं कर नहीं पाता हूँ, नहीं तो मैं ट्राई करूंगा इस कार्तिक मास में एटलीस्ट हम लोग साथ में आए और एक श्लोका का हम लोग पठन करें, उसका अर्थ समझे। ठीक है, तो आप लोग ज्वाइन करना उसको, अगर मैं चालू करता हूँ तो ना। आज मैं थोड़ा इस पे विचार करूंगा और अगर जमेगा तो आज या कल से मैं इसको चालू करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप लोग ज्वाइन ना कर पाए तो आप लोग क्या कर सकते हो, उसका रिकॉर्डिंग देख सकते हो ना। रिकॉर्डिंग एटलीस्ट सुन लो, देख लो, लगा कि खाली 10 मिनट लगेगा आपको, 10 से 15 मिनट में आपका एक श्लोक हो जाएगा ना। हमने जैसे चालू किया था ना, जब ये था पुरुषोत्तम मास था ना, उसमें हम लोग रोज एक एक श्लोका पढ़ते थे ना, अध्याय 15 का ना। वैसे ही हम लोग इसमें भी कोशिश करेंगे कुछ भगवत गीता के और श्रीमद् भागवतम के मेन मेन श्लोकों का थोड़ा पठन करें और उसका अर्थ समझें। ठीक है, अगर ये नहीं भी कर पाए लेकिन आप लोगों को कंपलसरी करना ही है, आप लोगों के लिए कोई छूट नहीं है, आप लोगों को रोज घर पे एक श्लोक पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन पढ़ेगा चैट बॉक्स में डालो, मी करके, मी या आय करके डालो। थैंक यू सोहम, थैंक यू पार्थ, गौरंगा, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो ऐसे ही हमको ये करना है ना, पढ़ना है इसको। तो अभी आगे चलते हैं हम लोग। आगे है कि चैंटिंग प्रेयर्स, प्रेयर्स को पढ़ना। तो कौन कौन से प्रेयर्स आते हैं, एक प्रहलाद महाराज का प्रेयर्स आता है ना, और फिर गजेंद्र मोक्ष का, गजेंद्र जो है हाथी थे ना, जिनको मगर ने पकड़ लिया था ना, अपने दांतों से दबा लिया था, तो उन्होंने प्रेयर्स बोले थे। तो प्रेयर्स हमको बोलने चाहिए ना। तो इसको अगर आप गूगल में भी सर्च मारोगे तो आपको मिल जाएगा, अगर मुझे मिलेगा मैं आप लोगों को ये भेजूंगा। ठीक है, और भीष्म प्रेयर्स, कुंती महारानी प्रेयर्स, फिर राधिका अष्टकम, ये हमारे जो वैष्णव गीत है किताब उसमें हमको ये मिल जाएगा, या ऑनलाइन भी अगर हम सर्च मारेंगे ऑनलाइन भी गूगल पे हमको मिल जाएगा। और क्या है, हमको दामोदर अष्टकम ना, दामोदर अष्टकम का पाठ करना है ना। ये सत्यव्रत मुनि द्वारा लिखा गया है, तो इसका भी हमको पाठ करना है ना। और एक है सबसे इम्पोर्टेंट ना, हमने जो चूहे की कथा सुनी, करेक्ट, उसमें हमने क्या देखा था, चूहे ने क्या किया था, हम्म, चूहे ने किया था लैम्प ऑफर ना। तो ऑफरिंग लैम्प, ऑफरिंग लैम्प, तो भगवान को दीपक दिखाना। और दीपक कैसा होना चाहिए, घी का दीपक होना चाहिए ना। जैसे हमने देखा सत्यभामा ने भी दिखाया, तो उनको क्या हुआ, जो पिछले जन्म में वो कोई दूसरी स्त्री थी और वो क्या बन गई, सत्यभामा बन गई और भगवान की धर्म पत्नी बन गई। भगवान की पत्नी बन गई हो। तो इतना बड़ा उनको वो मिल गया ना। खाली क्या की, पूरे कार्तिक महीने में भगवान को 2 टाइम वो दीप दिखाती थी ना, दीपदान भी बोलते हैं ना, ऑफरिंग लैम्प, घी का ही दीपक हमको दिखाना चाहिए ना। अगर घी ज्यादा नहीं है, छोटी सी बाती लो रुई की, उसको घी में डुबाओ और उस बाती को खाली भगवान को ऐसे ऐसे करके, अगर हमारे पास दामोदर का
चित्र है दामोदर और यशोदा माई का, तो वो दिखा के हमको लैंप ऑफर करना है। ठीक है, तो हम लोग अभी थोड़ा लैंप ऑफरिंग करते हैं, और ये जो गीत है दामोदर अष्टकम वो थोड़ा सुनते हैं। ठीक है, तो आप सब लोग भी थोड़ा दीपक की तैयारी कर लो, थोड़ा दीप लेके आ जाओ, और यहाँ पर मैं इस पे फोटो लगाऊंगा, और उसमें हम लोग वो गीत भी सुनेंगे और दीपदान करेंगे। ठीक है, तो आप लोग का यहाँ पे प्रैक्टिकल सेशन भी हो जाएगा कैसे दीपदान करना है। ठीक है, रेडी सब लोग? चलो 2 मिनट में सब लोग सब चीजें इकट्ठा करके लेके आ जाओ, और हम लोग देखते हैं। हम्म, मैं भी लेके आता हूँ। रिकॉर्डिंग को पॉज करता हूँ। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे भगवान को यशोदा माई ने इस उखल से बांधा है ना, ये है रस्सी, जिसको कहते हैं दाम ना, दाम उधर, ये उधर भगवान का इस पे रस्सी बांधी है ना? तो ये लीला है। अभी हम लोग, ये है दामोदर अष्टकम, इसका हम लोग सुनने वाले हैं, और इसमें इसका लिरिक्स भी आ रहा है ना, लिरिक्स भी हम लोग देख सकते हैं विथ मीनिंग। तो पहले तो आप ऑफर कर लीजिए लैंप ऑफरिंग, मैं भी अभी करता हूँ, और उसके पश्चात हम लोग इसको अच्छे से ध्यान से इसको हम लोग सुनेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड ना, आपको आवाज आ रही थी क्या? अभी मैंने जब इसका साउंड, खाली मुझे वाई करके डालना है तो चैट में आवाज आ रहा है। ओके, थैंक यू। और कौन चाहता है कि वीडियो पे आना चाहता है, आए करके डाल सकते हैं चैट बॉक्स में, आए करके, तो मैं उनको वीडियो पे लाऊंगा। ठीक है, थैंक यू थैंक यू। मैं आप लोग को भी रिक्वेस्ट भेजता हूँ, देखता हूँ आप लोग को। देखो अभी आप लोग अभी शेयर कर पा रहे हैं वीडियो? चालू कर पा रहे हैं वीडियो आप लोग? यस। यस। Okay. अभी तक आप लोग नहीं दिख रहे हो, वीडियो चालू करो। सब दिखत है। कौन कौन बाटे कौन। हरे कृष्णा, मेरा हाँ, वीडियो दिख रहा है क्या? मेरा नहीं दिख रहा, वीडियो नहीं दिख रहा। अभी मेरा वीडियो डिसेबल्ड हो गया है। क्या है प्रभु जी आपने? यू कैन नॉट स्टार्ट योर वीडियो बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। अच्छा, एक मिनट रुको। प्रभु जी हमारा वीडियो दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा। मेरा, हाँ दिखा दिखा। देखो अभी वीडियो दिखाने की कोशिश करो। हाँ, थैंक यू सो मच, नाइस टू सी यू ऑल। लेट मी ऑल्सो लाइट अप। ओके, लेट मी जस्ट स्विच ऑफ द फैन।
मैं ऐसे धीरे से इसको जला रहा हूँ, आप लोग खुद से नहीं जलाना, ठीक है? पेरेंट्स का हेल्प लेना अपने। चलो अभी हम लोग सब लोग रेडी हैं? यस रेडी। वेरी नाइस सोहम, पार्थ, गौरांगा, हरि बोल, अबीर, हरि बोल, गुड गुड। चलो लेट्स बिगिन द लैम्प ऑफरिंग। वी कैन स्टैंड एंड नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट द अष्टकम सॉन्ग आल्सो। गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं यशोदाभियोलुकलाधवमानं परामृष्टमत्यन्ततो धृत्य गोप्या नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं रुदन्तं मुहुर्नेत्र युग्मं मृजन्तं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं मुहुश्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठ स्थितग्रैवं दामोदरं भक्तिबद्धं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। बस हो गया, बस हो गया, अभी रख दीजिए, अभी आके बैठ सकते हो आप। थैंक यू। आनन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तम् आख्यापयन्तं तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताब्दी वन्दे तदीयेषिताग्नेषु भक्तैर्जितत्वं पुनः प्रेमतस्तं शताब्दी वन्दे नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्। वरं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा
न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह परं देवमोक्षं न मोक्षावधिं वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै इदं ते वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्या विरास्तां किमन्यै नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय ऋतं कुन्तलै स्निग्धैरक्तैश्च गोप्या इदं ते मुखाम्भोजम् अत्यन्तनीलय ऋतं कुन्तलै स्निग्धरक्तैश्च गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास। आर यू एक्सपीरियंसिंग नोइंग डूइंग ट्रैप? दोस्तों ये एक स्पेसिफिक साइकोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें तलं लक्षलाभय मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे मनस्य विरास्तं तलं लक्षलाभय नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं नमो देवदामोदर आनन्त विष्णो नमो देवदामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजालाब्धिमग्नं कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञं एद्यक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्ट्यातिदीनं बतानु गृहाणि क्षमामज्ञं एद्यक्षिदृश्य नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम्
त्वदीयोदरायात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च कुबेरात्मजौ बद्ध मूर्त्यैव यद्वा त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकामे प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमस्तेऽस्तु धाम्ने स्फुरादीप्तिदाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाय नमो लीलाय देवाय तोभ्यं नमो राधिकायाय त्वदीया प्रियाय नमो लीलाय देवाय तोभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानं लसत्कुण्डलं गोकुले व्रजमानम् हो गया खत्म।
प्रभु जी यू आर म्यूट। सॉरी सॉरी, अच्छा वो बता दिया। तो हम लोग ने इसमें देखे कि कैसे, एक जस्ट समराइज कर रहा हूँ मैं, हमने क्या क्या अभी तक हमने पढ़ा था उसको। तो हमने कार्तिक दामोदर मास क्या है उसके बारे में हमने देखा ना, कैसे इसका नाम दामोदर और कार्तिक पड़ा उसके बारे में हमने देखा। फिर बेनिफिट्स ऑफ कार्तिक दामोदर महीना ना, और उसमें हमने कैसे हाई डिस्काउंट सेल लगाया ना, डिस्काउंट हमको क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो यहाँ पे भी प्रेम का, भक्ति का डिस्काउंट सेल लगा है ना। जितना ज्यादा से ज्यादा हम लोग इस मंथ में भक्ति करेंगे, खुद को स्वच्छ साफ रखेंगे ना, जैसे टॉयलेट जा रहे हैं, टॉयलेट जाने के बाद हमको अगर है तो हाथ पैर अच्छे से धो ले, मुंह में अच्छे से गार्गल करके वो करके फिर हमको रहना चाहिए, एकदम साफ सुथरा जितना हम लोग रह सके रहना चाहिए। स्टोरी ऑफ माउस और सत्यभामा का देखिए, गो बैक टू गॉड हेड ना, वो हमने देखे कैसे भगवान के धाम में हम लोग जाएंगे अगर इस महीने में अच्छे से हम लोग नियमों का पालन करेंगे तो। और हमको शक्ति मिलेगी। कैसी शक्ति मिलेगी? नेगेटिविटी से लड़ने की शक्ति मिलेगी। इसके ऊपर भी हमने डिटेल में चर्चा किया। और फिर था सिग्निफिकेंस ऑफ कार्तिक दामोदर मास फॉर स्टूडेंट्स, क्या स्टूडेंट्स लोग को, बच्चों को क्या इसका बेनिफिट मिलेगा उसके बारे में हमने देखा ना, स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस, कैसे हम लोग प्रेयर्स कर सकते हैं ना। अभी जैसे हमने जो प्रेयर किया, दामोदर अष्टक किया, और फिर हमने क्या किया, दीपदान किया ना, इससे क्या हुआ, हमने हमने ऑस्पिशियसनेस को हमने इनवाइट किया ना। जो भी ऑस्पिशियसनेस है वो अभी हमारे जीवन में आएगा ना, एक पॉजिटिविटी आएगी एक ना, क्योंकि जीवन कैसा है, ये दुखालय है, यहाँ पे नेगेटिविटी है खाली। लेकिन जब हम भक्ति करेंगे ना, ऐसे सब पॉजिटिव एक्टिविटी करेंगे, तब निगेटिविटी वहां पे नहीं रहेगी, तब सब आपको पॉजिटिव रहेगा। आपका विचार, आपकी सोच, हर चीज क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये हमको करना है और फोकस रहेंगे, इनर पीस मिलेगा ना, अंदर से शांति मिलेगी। अभी आप लोग ने जो किया उससे आप सब लोग को आनंद आया ना, सबको बहुत अच्छा लगा रहेगा, करेक्ट? ऐसा है, तो ये शक्ति है इसमें ना, इसमें सबको बहुत आनंद आता है। फिर है फेस्टिवल सेलिब्रेशन, बहुत सारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं, दिवाली, गोवर्धन पूजा, कार्तिक पूर्णिमा, एकादशी ना, एकादशी भी हमारे लिए फेस्टिवल है, तो वो भी आएगा। तो उसमें भी हमको बहुत अच्छी तरह से हमको उसका भी पालन करना है, अच्छे से उसको सेलिब्रेट करना है। फैमिलीज के साथ गेट टुगेदर होगा, जिससे क्या होगा, हमारा प्रेम बढ़ेगा ना। और फिर हमने देखा डिसिप्लिन सीखेंगे हम लोग। और फिर ग्रेटिट्यूड ऑफ गिविंग ना, कैसे हमको सबको देना है ना, और कृतज्ञ रहना जो भी हमको मिल रहा है, और सबके साथ सब चीजें शेयर भी करनी है। नॉलेज शेयर करना सबसे बहुत बड़ी चीज है ना, तो वो हमको शेयर करना है। स्टोरी जो आपने आज सुना वो जाके सबको बताना है। फिर फॉस्टर एम्पैथी, कंपैशन, सेंस ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ना, हमको दूसरों की मदद करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना जागृत होगी ना, जब हम कृतज्ञ होंगे कि हमको भगवान ने बहुत कुछ दिया, थैंक यू सो मच भगवान। तब हम क्या होंगे, सेल्फ से हट के क्या होंगे, सेल्फिश है ना। अभी तो हम लोग सेल्फिश है कि मुझे अच्छा खाना मिल रहा है क्या, मुझे अच्छा पानी मिल रहा है क्या, अच्छा कुछ कुछ चीजें मिल रही है, अच्छा टॉय मिल रहा है क्या, सब अपने बारे में सोच रहे हैं हम। जैसे ही हम दूसरों के बारे में सोचेंगे, तब हमें अपने आप मिल जाएगा, क्योंकि हमारा ख्याल रखने के लिए कौन है, भगवान है ना। उसके ऊपर भी हमने देखा, कृष्ण अवश्य रक्षी, कृष्ण हमारी रक्षा अवश्य करेंगे ना। जैसे माता पिता हम छोटे थे तो वो रक्षा करते थे, अभी कृष्ण हमारी रक्षा करेंगे, जहां भी हम जाएंगे वहां पे हमारा रक्षण कौन करेंगे, कृष्ण करेंगे। हम्म और फिर चैंटिंग ऑफ द होली नेम्स, हाउ टू ऑब्जर्व कार्तिक दामोदर महीना, चैंट करके ना, भगवान के नामों का, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक भगवान को, जो थोड़ा फास्ट लेता हूँ मैं क्योंकि टाइम बहुत हो गया है इसमें, एक राउंड इक्विवेलेंट टू 1 लाख राउंड इस कार्तिक महीने में। और ट्राई टू इंक्रीज योर राउंड्स ना। और फिर क्या है, संकल्प लेना है ना, ईटिंग संकल्प ले लो। और खाली एक, जो भी चॉकलेट है ना, हमने क्या डिसाइड किया, चॉकलेट नहीं खाने का, चॉकलेट छोड़ देना है, ठीक है। और फिर चैंटिंग स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स डेली, रोज निश्चित एक संख्या पे हमको चैंट करना है। और एकादशी कैसे भी करके ऑब्जर्व करना है, ठीक है। ग्रेन्स नहीं खाना है, और फिर भगवान को भोग लगाना है। चैंट एक श्लोका भगवान का, भगवत गीता का या भागवतम का एक श्लोक पढ़ना है। और फिर चैंट प्रेयर्स, प्रेयर्स कौन कौन से देखे हमने, ये सारे प्रेयर्स थे ना, प्रहलाद महाराज, गजेंद्र मोक्ष,
प्रेयर, फिर भीष्म पितामह का प्रेयर, कुंती महारानी का प्रेयर, राधिका अष्टकम, फिर दामोदर अष्टकम। इसमें से हमको रोज एक प्रेयर्स हमको पढ़ना है, बोलना है भगवान के सामने, भगवान की प्रसन्नता के लिए ये पढ़ना है। और क्या करना है, लैंप ऑफर करना है ना भगवान को। दामोदर अष्टकम हो जाए उसके बाद या जैसे भी साथ में हमको दीप दान करना है, रोज 2 टाइम, याद रखना। हाँ, 2 टाइम करना आप लोग। और फिर कोई अगर आपका प्रश्न है तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे अब डालिएगा, क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है ना, तो आप लोग का प्रश्न मैं नहीं ले पाऊंगा। आप लोग प्रश्न कहाँ पे डाल सकते हैं अपना, अगर आप लोग ने एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड किया है तो उस किड्स लाइफस्टाइल हब का, तो उसमें कम्युनिटीज है ना। अगर नहीं भी किया है तो ब्राउजर से भी school.kidsLifestyleHub से जब जाएंगे तो वहाँ पे कम्युनिटीज सेक्शन है, उसमें भी आप जाके आप चैट कर सकते हैं ना। कम्युनिटीज में आपके क्वेश्चंस कभी भी डाल सकते हैं, तो उसको मैं आंसर किया करूंगा। मैं हमेशा उसको देखते रहता हूँ। तो आंसर करने की कोशिश करूंगा, तो आप लोग प्लीज डालिए। और आज आप लोग ने जो भी सीखा है ना, और जो भी आपको अच्छा लगा, तो आप लोग कमेंट में डालना ना भूलें ना। आप लोग कमेंट वहीं पे डाल सकते हैं ना, या तो इस देखना ट्राई करना कि इस वेबिनार के लिए कोई कमेंट आता है क्या, उसमें आप डाल सकते हैं। या कहीं भी आप लोग गूगल पे जाके भी मुझे फीडबैक दे सकते हैं, या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी जाके आप लोग मुझे फीडबैक दे सकते हैं। ठीक है, तो फीडबैक भी दीजिएगा कैसा लगा आज का सेशन, जिससे कि वो फीडबैक बाकी लोग से भी शेयर करूँ और बाकी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसमें जुड़े ना। आप लोग से भी मुझे रिक्वेस्ट है, करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ मेरे जो भी मैसेजेस रहे उसको स्प्रेड किया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सेशन में आए और इसका लाभ लें। प्लीज़ इसको शेयर करना। और एक बेनिफिट है, जैसे मेरे जो पेड कोर्सेज रहते हैं, अगर आप उनको शेयर करोगे, आपके लिए अगर देखेंगे आप लोग, आपको एक एफिलिएट का लिंक मिलेगा ना, तो आप लोग एफिलिएट का लिंक को रजिस्टर करें। उसमें एज ए एफिलिएट बन जाए, तो आपको अगर मेरा कोई भी कोर्स अगर कोई बाय करेगा फ्यूचर में, जो भी 100,000 रुपीज़ का, तो आप लोगों को उसमें से 15-20% आप लोग को भी मिलेगा ना। और वो हर मंथ के एंड में आप लोग को जमा होगा, तो आप लोग जो कोर्स खरीदेंगे आप लोग का कोर्स फ्री हो जाएगा। खाली आपका आपका एक स्पेशल लिंक तैयार होगा, उसको आप कॉपी करके आपका लिंक आप शेयर करो। उस लिंक से अगर कोई रजिस्टर करता है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ये उसको आपको बेनिफिट मिलेगा ना, क्योंकि आप अब एफिलिएट बन गए हो। तो ये भी फैसिलिटी है अपने पास। ठीक है, तो इसका भी फायदा उठाना। जो भी आएगा उसमें जाके आप वो कोर्स को कॉपी करना लिंक, और अपने ग्रुप में, अपने स्टेटस पे भी आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हो। तो कोई भी उससे परचेस करेगा तो आपका जो भी 20% 15% वो आपका डिसाइड है, वो आपको मिल जाएगा, वो आपको दिखेगा आपको कितना परसेंट मिलने वाला है। तो ये भी आप लोग कर सकते हो। तो आपका जो कोर्स है, आप जो इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं या डाल रहे हैं, आपके लिए आपका फ्री हो जाएगा ना। और इससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी जुड़ेंगे। तो बस एक ही हेतु है कि ये जो मैं कर रहा हूँ ये ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे ना, ये मेरा एक प्रयास है। तो आप लोग प्लीज़ इस प्रयास में मेरी मदद करें और इसको स्प्रेड हो करने के लिए मेरा थोड़ा हेल्प करें। ठीक है, एक मैं वीडियो भी देखूंगा एफिलिएट का, बनाने की कोशिश करूंगा, वो शेयर करूंगा आप लोग से। तो वो वीडियो भी आप लोग देख के कैसे एफिलिएट को आप कर सकते हैं, आपको पता चलेगा। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। हम लोग वापस से कल अगले सेशन में हम लोग मिलेंगे। ट्राई करूंगा कि अगर कोई सेशन में रख पाऊँ तो जरूर रखूंगा रोज का, अगर कोई श्लोका का ऐसा हम लोग रखने का करें तो। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। मैं भी स्टॉप करता हूँ ये सेशन। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग टुडे सेशन। वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन अगेन। थैंक यू सो मच। कोई कुछ बोलना चाहता है क्या? मंगला साली माता जी कुछ बोलना चाहती हैं आप? अनम्यूट करके बोल सकती है। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। चैंटिंग करना है, ज्यादा से ज्यादा जप करना है, हाँ? सब बच्चों को। ठीक है, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हर हरे कृष्णा।